Good morning students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Children, today we are starting with the revision class of chapter 1, Knowing Our Numbers. Before starting with this chapter, I would like to throw light on the basic concepts of this chapter. So I will just write some basic concepts. First, I would like what is numbers, the points that we will discuss in this chapter, numbers, then comparing numbers, then we will discuss about place value chart, then how to put commas, okay, and the last and then is the how to write the number names, and the last topic that we will discuss is the estimation, that is the estimation of the numbers. So children, these are some points that we will discuss in this chapter, that is numbers, comparing numbers, place value chart, commas, number names and estimation. So we'll just start discussing, children. I hope you all are ready with your books and rough copies. Please take out your books and rough copies, everybody. I will just give a brief introduction as a detailed description has already been given to you in the video and the recap of this chapter, okay. So first of all, what are numbers? Numbers क्या होते हैं? Numbers are formed with the help of the digits. Numbers कैसे बनते हैं? With the help of the digits. As for an example, these are all numbers 1, 2, 3, 4 and so on. And if you just form a number, that means that you are combining the digits. That is, suppose 1 to 12, 64, 89 and so on. That means when you are just combining the numbers, digits are formed. जब भी आप डिजिट्स को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? नंबर्स मिलते हैं. अब नंबर्स को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है. एज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कोई आपका मैथ्स का क्या हुआ है, टेस्ट हुआ क्लास में एंड यू आर जस्ट गेटिंग नंबर्स आउट ऑफ 20. आपका पीटी कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का था. सपोज वन ऑफ द स्टूडेंट इज जस्ट सिक्योरिंग द 20 मार्क्स, फुल मार्क्स आए और एक स्टूडेंट के 19 मार्क्स आए. तो आप क्या करोगे? अपने स्कोर को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करोगे. दैट इज वन स्टूडेंट इज गेटिंग द 19 मार्क्स एंड द अदर इज गेटिंग द 20 मार्क्स. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंपेयर करेंगे. दैट मीन्स व्हेन यू कंपेयरिंग द नंबर्स, तो आप कौन कौन सी साइन यूज करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू. ओके, नाउ इफ आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर ओवर हियर, दिस इज 64 एंड दिस इज 46. ओके, और इसके पहले यदि मैंने एक नंबर लिखा है 8 and the another number I have just written is 19. तो जो नीचे वाला नंबर है 8 और 19, ये तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर एंड दिस इज अ 2 डिजिट नंबर. तो ऑब्वियसली जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 1 डिजिट नंबर से बड़ा होगा. दैट मीन्स दैट 8 is less than 19, or in other words you can just tell that 19 is greater than 8. But if you are comparing between the two numbers in which the number of digits are equal, जब आप ऐसे दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी अ चिल्ड्रन, फॉर एन एग्जांपल, हियर द नंबर 64 एंड हियर द नंबर इज 46. तो आप क्या करेंगे? प्लेस बाय प्लेस उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ पे है फर्स्ट नंबर 6 and here the first number is 4. You can see children that 6 is greater than 4. 6 क्या है? 4 से बड़ा है. That means that 64 is greater than 46. Is it clear? Now take one more example over here children. यहाँ पे तो इजीली हमने फर्स्ट नंबर को कंपेयर कर लिया. अब सपोज करिए कोई ऐसा नंबर है, if the number is like that is 64 and 63. आपको इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर करना है, कंपैरिजन ड्रॉ करना है. तो आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट सी द फर्स्ट नंबर. यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर 6 है और यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर क्या है? 6 है. नाउ जब दोनों प्लेसेस पे यदि सेम नंबर एग्जिस्ट करते हैं
तो हम दूसरे नंबर पर स्विच करके उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे है नंबर 4 और यहाँ पे है नंबर 3। सो द नंबर्स एट द सेम प्लेसेस यू कैन कंपेयर। सो यहाँ पे क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स दैट 64 इज ग्रेटर देन 63। सो दिस इज हाउ चिल्ड्रन दैट यू यूज टू कंपेयर द टू नंबर्स। ओके, अब हमने यहाँ पे प्लेसेस को कंपेयर किया है। सो वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लेस वैल्यू। Okay, that is the place value. In the previous classes, in the lower classes, you might have studied that ones place, tens place and 100 place. अब हम उससे और कुछ आगे बढ़ेंगे and we'll just study about the place value chart. So children, just please listen with rapt attention now. It's a very important topic, okay? And this concept can be used in the other classes also. So children, we are just studying about now the place वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? प्लेस वैल्यू चार्ट, सपोज कर हमको एक नंबर लेते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एनी नंबर ओवर हियर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पूरा एक ही नंबर है। आई हैव जस्ट टेकन सम डिस्टेंसेस टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इज अ सिंगल नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। ये कौन सी प्लेस होती है? दिस इज, जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो सिस्टम्स को रेफर करेंगे, ओके, एज आई हैव ऑलरेडी जस्ट टोल्ड यू इन डिटेल इन द माई लास्ट वीडियो, ओके। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, दोनों में प्लेस वैल्यू में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट स्टडीइंग अबाउट द इंडियन नंबर सिस्टम। तो यहाँ से हम हमेशा कहाँ से प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं? दैट इज फ्रॉम द राइट मोस्ट, आप सबसे लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज नोन एज वंस, इसको आप बोलते हैं टेंस, दिस इज 100, ये 100, दिस इज 1000, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, दिस इज, ये इंडियन नंबर सिस्टम की हम बात करें तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, देन कम्स द 10,000, ये है 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है इंडियन नंबर सिस्टम में? दैट इज योर, इट इज lakh, then it comes 10 lakh, after that it comes crore, and then comes 10 crore. So this is a place value chart that we are studying about the Indian number system. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम इस तरीके से चलते हैं। बट व्हेन वी आर जस्ट स्विचिंग ऑन टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे कुछ नंबर्स तक तो प्लेस वैल्यू सेम रहता है, बट आफ्टर दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सबसे पहले इट इज वंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ओके। वंस, then comes tens, then comes 100, उसके बाद आता है 1000, it comes 1000, then that is 10,000, ठीक है। 10,000 तक तो हम सेम चलते हैं। अब तो 10,000 इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम होता है। आफ्टर दैट अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100,000, ये 10,000 था, हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद लैख पर स्विच कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम 10,000 के बाद हमारे पास आ जाता है 100,000, ओके। मतलब 1 लाख जो होता है वो 100,000 के इक्विवेलेंट होता है। 1 लाख इज इक्वल टू द 100,000। अब 100,000 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज 1 मिलियन,
दैट इज 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। फिर 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियंस, और 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन, दैट इज द 100 मिलियन। तो यहाँ पे जो रहता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में up till 10,000 we are having the same place value in both the system of numeration, that is the Indian and the international. But international के केस में after 10,000 आता है 100,000, then comes 1 million, then comes 10 million, and last it comes the 100 million. We can just extend it, that is to the billion, trillions and so on. Now जब हम ये नंबर लिखते हैं तो इसको रीड करना क्या होता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच सच लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। सो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कॉमास इन बोथ द सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम में जब हम कॉमास लगाते हैं तो देयर इज क्वाइट डिफरेंस। नाउ हाउ वी हैव टू डू द पैरिंग, वी विल जस्ट talk about that, okay? So our next topic is how to place the commas, that is the commas, okay? Now just see the next one, commas. I will just explain you in short, children. Suppose करो हमारे पास एक नंबर है 7825546, ठीक है। अब हमको इंडियन नंबर सिस्टम में इसमें कॉमास लगाना है। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कॉमास लगाना, वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट, हम वन प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब पैरिंग कैसे होती है इंडियन नंबर सिस्टम में, 3 2 2 एंड सो ऑन। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जब हम कॉमास लगाते हैं तो हम राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं एंड वी डू द पैरिंग इन दिस वे 3 2 2 एंड सो ऑन। बट जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जब आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमास कैसे लगाते हैं। सपोज करो हमारे पास नंबर है 986257 दिस इज द नंबर। अब आपको जो कॉमास लगाने हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लगते हैं, यहाँ पे पैरिंग थोड़ी बहुत डिफर करती है। वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट ओनली। यहाँ पे पैरिंग कैसे होती है 3 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो पेयर्स बनते हैं 3 3 के बनते हैं, 3 3 3 एंड सो ऑन, ओके। तो जब हम ये पैरिंग करते हैं, अब आपका ये क्वेश्चन होगा, इट माइट बी अ क्वेश्चन रेज इन योर माइंड दैट व्हाई वी आर डूइंग पैरिंग इन सच अ वे, व्हाई देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन द इंडियन नंबर सिस्टम एंड द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द रीजन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो जब हम यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में पैरिंग करते हैं तो हमारे पास पैर बनता है यूनिट टेंस 100, दैट इज वंस टेंस 100, then 1000 10,000 and then lakh 10 lakh and so on. बट जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पैरिंग करते हैं तो कैसे पैर बनता है, यूनिट टेंस 100, 1000 10,000 और 100,000, और फिर 100,000 के बाद आपके पास आता है मिलियन 10 मिलियन एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पैरिंग 3 3 की करते हैं, और जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें पैरिंग हम करते हैं 3 2 2 एंड सो ऑन, okay. Now just come to the children next topic. Our next topic is, children, how to read the number names. It's very much easy. I'm just giving you an example. Suppose the number is 2 3 4 5 6 7, ये एक नंबर है, okay. अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको इंडियन नंबर सिस्टम में रीड करना है, तो यू विल जस्ट रीड द नंबर नेम्स इन अदर वे। तो पहले सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वी विल इंट्रोड्यूस द कॉमर्स 3 2, ओके, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख। तो जब आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2,34,567। अब सपोज करो आपके पास कोई नंबर दे रखा है 98654332, ओके। अब आप उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको उसको रीड करना है, तो कैसे करेंगे, यू विल डू द पैरिंग ऑफ 3 3। सो यूनिट टेंस 100 1000 10,000 100,000 एंड देन कम्स द मिलियन। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, 9,865,432। I will just make you more clear when we will just solve this exercise, okay. Now our last topic is to estimate the value, okay. How to do the estimation.
जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, दैट इज द एस्टिमेशन. आई विल जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल. सपोज करो आप एक शॉप पे, ग्रॉसरी शॉप पे कुछ परचेस करने गए, ओके. अब जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो MRP उस पर दे रखा है 279.50, दैट इज रुपीज 279.50. बट शॉपकीपर क्या करेगा, इतना उसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा. वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 279.50 ही विल कट रुपीज 280. उसने क्या करा है, 279.50 लेने की जगह क्या लिया है आपसे, 280 रुपीज़ लिए हैं. तो उसने क्या कर दिया, इस फिगर को, इस कॉस्ट को यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है. एज फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू आर जस्ट स्कोरिंग मार्क्स, सपोज करो आपके मार्क्स जो है 19.5 आए, यू हैव स्कोर्ड 19.5 मार्क्स आउट ऑफ 20. तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, व्हेन यू आर जस्ट डिस्कसिंग, आप क्या बोलते हो, 20 आउट ऑफ 20 है, व्हाट यू विल डू, आप इस 19.5 को राउंड ऑफ कर देते हैं. सो दिस एस्टिमेशन इज नोन एज द राउंड ऑफ. हम इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स विच मेक्स द कैलकुलेशन मोर ईजी. यदि हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कुछ ईजी हो जाती है. इज इट क्लियर? जैसे कि सपोज करो कोई नंबर है, यदि नंबर है 1 2 3 4, तो आपका जो नंबर नियरेस्ट नंबर रहता है वो आगे नहीं बढ़ाते, हम उसको क्या करते हैं वहीं पे. जैसे कि सपोज करो नंबर 34 है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे 30 में. इफ द नंबर्स आर जस्ट लाइक 6 7 8 9 इवन 5 वी आर कंसिडरिंग, यदि 0.5 भी आ जाता है तो आप क्या करते हो, एक नंबर उसको बढ़ा देते हैं, यू जस्ट राउंड ऑफ इट. तो सपोज करो यदि नंबर 39 है तो आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे 40 में. इज इट क्लियर? So these were some of the basic concepts that we have already discussed. Now let's start with the exercise. So children, please take out your books. We'll start with the exercise now, okay? And please start solving the rough copies, children. We will discuss some of the questions. Now take out exercise 1.1. Exercise 1.1, page number 12. Okay? Page number 12. Just see children, question number 2. Question number 2, place commas correctly and write the numerals. आपको क्या करना है, commas को place करना है and you have to just write the numerical value. So just see the A part, that is 73,75,307. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? So it is 73 lakh. Children, I will just write down the answers. I will not write down the statement. 73 lakh 75,307. 307. अब आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है लैक बोल दिया, मतलब इट इज जस्ट स्पेसिफाइंग दैट इट इज द इंडियन सिस्टम. ओके, तो हम कॉमास कैसे लगाएंगे, 3 2 2 एंड सो ऑन. तो विल स्टार्ट प्लेसिंग द कॉमास 3 then 2. So this is 73,75,307. Now see children, the next one, that is the E part. Rest of you can just practice on your own. Just see the E part. 23,30,010. That is 23,30,010. ठीक है, तो यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So this is the way you are placing the commas, 23 lakh, 30,000 and 10. Now just see children, question number 3. Insert commas suitably and write the names according to the Indian system of numeration. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आपको दे रखा है सबसे पहले आप कॉमास को इंसर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नंबर नेम्स. सो जस्ट सी हियर, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. See the A part. 8 7 5 9 5 7 6 2. So this is the number given to you and you have to insert the commas by an Indian system. So we'll do the pairing 3 2 2 and so on.
3, 2, 2 and so on. And you have to write the number names. So unit, that is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. So what you can write? That is the 8 crore, 8 crore, 75 lakh, 75 lakh, 95,000, 95,762, 762. So this is the easier way by inserting the commas first and then write the number names. Now just see children the next one. This was one of the example of the Indian number system. Now just see the question number 4. What does the question number 4 says? Please go through it. Question number 4. Now insert commas suitably and write the names according to the International System of Numeration. Now just take an example over here children. That is 745, just say the B part or take the A part only. That is 7, 8, 9, 210, 92. This is the number. First of all, you have to insert the commas. So, international number system है तो हम क्या करेंगे? We'll take the pair of 3, 3 from the right. So, 3, 3. Okay. So, now just count it. Place value. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000 and just a minute. Unit, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. This is the million and 10 million. तो क्या बन जाएगा? That is 78 million. 78 million 921,000 921,092. 92. Is that clear students? So this is the way we are writing the number names. Now switch on to the next exercise. Please open exercise 1.2. Now solve this. Okay, so please pay attention. Open exercise 1.2 and it's the page number 16. 1.2, page number 16. Now just see children, we will just solve the first question. What is the first question that is in the book? A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. What has been given? 4 days पे जो है अलग अलग एक एग्जीबिशन है जिसमें चारों दिन के लिए अलग अलग नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. टोटल वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या करना है, आपको जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर ऑफ टिकट्स दे रखे चारों दिन के, फॉर ऑल द 4 days यू हैव टू जस्ट ऐड द टिकट्स. दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. ओके, सो वी कैन जस्ट राइट हियर that is the tickets sold on first day, tickets sold on first day. कितना दे रखा है first day? That is 1094. 1094. Similarly, tickets sold on सेकेंड डे. सेकेंड डे पे कितना टिकट्स हुए हैं? दैट इज 1812. सिमिलरली टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे.
which is equals to 2050 and tickets sold on 4th day. 4th day पे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? That is 2751. Now what you have to do? Total number of tickets sold on 4 days. So total number of tickets is equals to that is you will add all this 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751. So when you will just add, so 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, then 9 10 15 and 5 20, 10 17 3 4 5 6 7. So 7707 are the total number of tickets that has been sold in the 4 days. Now just see the next question over here, children. Switch on to the next question now. Just go through the third question. Please go through the third question that we will solve on the board. Now question number 3. Just go through it. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? क्या पूछा गया यहाँ पे कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसने कितने वोट स्कोर करे हैं, प्लस जो राइवल है व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिम, एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट हु हैज स्कोर्ड मोर एंड बाय हाउ मच. अब जब यहाँ पे हमको कंपैरिजन की बात आ जाती है, व्हेन एवर देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इट्स बट ऑब्वियस कि हम वहाँ पे दो चीज़ों का क्या लेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे. एज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो आपने मैथ्स में आउट ऑफ 80 सिक्योर करे 75 मार्क्स और एक दूसरा आपका फ्रेंड है उसने सिक्योर करे हैं 78 मार्क्स. नाउ इफ आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट व्हाट इज द हु हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स एंड बाय हाउ मच, तो आप क्या करेंगे 78 माइनस 75. तो आप क्या करें, जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं दैट मीन्स दैट यू आर टेकिंग द डिफरेंस. Likewise in this question as we have to do the comparison, so you have to take the difference. अब क्या करेंगे, we'll just write down the number of votes secured. So votes secured by a successful candidate. A successful candidate which is equals to how many votes, that is 5,77,500. 5,77,500. Now number of votes secured by a rival, votes secured by a rival. So how much votes he has secured, that is 3,48,700, which is equals to 3,48,700 votes. Now what is the question that is being asked to you, that is by what margin did the successful candidate win the election. तो हमको क्या निकालना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है कितने वोट से विन हुआ है. सो वी कैन जस्ट राइट देयरफॉर number of votes by which a successful candidate win is equal to the difference of both, that is the 5,77,500 minus 3,48,700. So we will just take the difference. So 0, 0, 15, 7, 8. Now 17 minus 9. So your answer comes out to be, that is 2,28,800 is the number of votes by which the successful candidate has won the election. Okay.
So 228800. Now just switch on to the next question, children. Just see the question over here. Question number 6. Just go through question number 6 now. What is there in the question number 6? Please read it and understand it. Now, question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? क्या बोला गया है कि एक जो मशीन है एवरेज पर डे कितना जो है मैन्युफैक्चर करती रही स्क्रू को, डेट इज 2,825 इन द मंथ ऑफ जनवरी. टोटल पूरे मंथ के अंदर कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा स्क्रू का, डेट यू हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं. डेट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी देयर आर 31 डेज. यदि एक दिन के अंदर 2,825 मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्क्रूज की, तो 31 डेज में कितनी होगी, ज़्यादा होगी. तो जब ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, डेट इज 31 मल्टीप्लाइड बाय 2,825. सो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन. दैट इज द per day manufacturing of screws is equals to 2,825. This is the per day manufacturing of the screw. एक दिन के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो इतनी स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करती है. अब पूछा गया है कि जनवरी के मंथ में कितना प्रोडक्शन होगा. तो एज यू नो चिल्ड्रन, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन मंथ ऑफ जनवरी देयर आर 31 डेज. जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज है. तो ऑब्वियसली अब जनवरी में कितना प्रोडक्शन होगा, therefore in January number of screws manufactured is equal to 2,825 into 31. So you have to take the product of 2,825 into 31. So when you will just check the product, just here, that is 2,825. Just total it. That is 87,575. 87,575. These are the number of screws that will be manufactured in the month of January. I hope children that you are getting. Are we able to understand? Yes, very good. Now just see children, we can see one more question over here. Just see question number 8. Just go through question number 8. A student multiplied 7236, that is 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. क्या करें स्टूडेंट ने, क्या मिस्टेक कर दिए, that the multiplication that he was to carried out was by 65, बट गलती से बाय मिस्टेक उसने प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया है, 56 के साथ कर दिया है. सो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर. तो कितनी वैल्यू से उसका जो आंसर है ग्रेटर है. अब क्या पूछा गया, अगेन देयर इज अ कंपैरिजन. वापस से क्या है यहाँ पर कंपैरिजन है. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप क्या लोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे. दैट इज यू विल हैव टू टेक द डिफरेंस. सो जस्ट सी चिल्ड्रन, वंस मोर गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 8. Read it properly. What you have to do, start trying on your own. Now just see question number 8. A student multiplied 7236 by 65. So we have to take the difference of 65 and 56. So difference of 65 and 56, that is 65 minus 56.
इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 9. ओके, कितने की मिस्टेक हुई है? दैट इज द 9 की मिस्टेक हुई है. नाउ अब क्या करेंगे हम, जो हमें पर्टिकुलरली डिजिट दे रखी है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 7236 into 9. That will give you the answer. So 9 6 are 54, 5, 9 3 are 27 plus 5, 32, 18 plus 3, 21, 9 7 are 63 plus 2, so 65124. That is 65,124. तो अब कितने की मिस्टेक हुई है? So by what number it has been taken? Just see here. By how much was his answer greater? So answer was greater by, that is 7236. This is the number. So we have already find out this is the particular digit. 9 का difference था, हमने किससे multiply किया है? That is the 7236. So this is the required answer. Okay, this is the difference that we have already found it out. Now just switch on to the next exercise, that is the last exercise, exercise 1.3. In this we'll just talk about the estimation. Now just see children, take out exercise 1.3, page number 23. 1.3, page number 23. Now just see the first question. Estimate each of the following using general rule. हमें क्या करना है, यहाँ पे राउंड ऑफ निकालना है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाए, इजी हो जाए. सो जस्ट सी क्वेश्चन फर्स्ट, ए पार्ट दैट इज 730 प्लस 998. So you have to just estimate it. Now you can see here, जब भी आप एस्टिमेशन करते हैं और यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि आपको दे रखा है, तो जो आप राउंड ऑफ फर्स्ट डिजिट में करेंगे, फर्स्ट नंबर में करेंगे, दैट सेम राउंड ऑफ यू विल डू इन द सेकंड नंबर ऑल्सो. यदि आप टेंस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी टेंस मिलेंगे. यदि आप 100 पे कर रहे हैं देन इन फर्स्ट नंबर ऑल्सो यू हैव टू यूज द राउंड ऑफ अप टिल द 100th प्लेस. ओके, तो 730 है, सपोज नाउ राउंडिंग ऑफ टू 100, rounding off to 100. Now just see your children, 100 तक राउंड ऑफ करना मतलब क्या है, यूनिट टेंस 100. 100 के बाद के जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. सो यू कैन सी चिल्ड्रन कि 7 के बाद यहाँ पे क्या है, 3 है, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, इट विल जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू 0. इट इज 700. That is the number at 100 place after rounding off will become 700. क्योंकि 7 के बाद क्या है, 3 है. यहाँ पे यदि 5, 6, 7, 8 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक नंबर आगे क्या हो जाता, इट वॉज इज गेटिंग इंक्रीज. वहाँ पे क्या बन जाता, 800 बन जाता. पर चूंकि 3 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बी जस्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय 0. तो यहाँ पे क्या बन गया, 700. अब 998. अब हमको क्या करना है, जो 100th प्लेस पे उसके बाद की जो डिजिट्स है उसको आपको क्या करना है, 0 करना है. तो 9 के बाद क्या है, 9 है. सो यहाँ पे हम 9 में क्या प्लस कर देंगे, वी विल जस्ट प्लस 1. सो इट विल बिकम 1000. सो 700 प्लस 1000 विल बिकम 1700. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल about this estimation in the previous video also. So I hope children that you are getting clear now. Now just see the next question over here children. Just see question number 2. Just see question number 2, A part. Again you have to estimate the value. Question number 2, A part. 439 plus 334 plus 4317 plus 4317.
अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, एज वी कैन सी कि यहाँ पे जो है हमारे पास 4317 है, बट हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो वी टेक द सेम प्लेस वैल्यू फॉर द राउंड ऑफ फॉर ऑल द डिजिट्स टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो विल जस्ट राइट राउंडिंग ऑफ टू 100, राउंडिंग ऑफ टू 100. 439 है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 के बाद क्या है 3 है, इट विल बिकम 400. 334, 3 के बाद वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 3, तो 3 के बाद यहाँ पर क्या है 3 है, तो अगेन इट विल बिकम 300. नाउ अगेन वी हैव टू जस्ट, अब हम इस 3 के बाद देखेंगे क्योंकि क्या करना है हमें हंड्रेड्स के बाद प्लेस करना है. तो 3 के बाद क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा 4300. When you will just add it, it comes out to be 700 plus 4300. So your approximate or estimated value is 5000. Got it, children? So this is a way to round off. Now we can take one more question, that is the last question of this exercise, that is question number 3. Again we have to estimate the value, but here the mathematical operation that is used is the of multiplication. We will perform the operation of multiplication in the estimation. So question number 3, just see the B part, that is 5281 into 3491. Okay, again we have to round off. Now we can round off to the 1000. यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, मतलब 5 के बाद जितनी डिजिट्स होगी वो क्या होनी चाहिए, सारी 0 होनी चाहिए, और 3 के बाद भी जो डिजिट्स होनी चाहिए वो सारी 0 होनी चाहिए. सो राउंडिंग ऑफ टू 1000, राउंडिंग ऑफ 2000, ये क्या बन जाएगा. नाउ यू कैन सी 5 के बाद क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा 5000. 3 के बाद यहाँ पे क्या है 4 है, नो चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3000. सो 5 3s are 15. हाउ मैनी zeros? That is the 6 zeros. 1 2 3 4 5 and 6. So 3 2 2. Is it clear? So this is the value after estimating the product. Okay. So children, what I have taught you, I hope you understood it well. I am just giving you some practice questions. So let's have a view over it. So children, I hope that you have understood the concept of knowing our numbers, whatever I have just taught you. So please keep on practicing. These are some questions, these are the practice questions that you can solve. Besides this, whatever the videos that I've just told in the previous videos, please explore that well. So children, please take good care of yourselves. Thank you.